everyone, welcome back to CLAT Waves. If you are preparing for CLAT 2025 and are wondering how to make the next 5 months count, you are in the right place. Whether you are just a fresher who has started the preparation and need help on how to cover the rest of the syllabus and improve your practice, or you are a beginner who has completed some of the syllabus and need a forward approach, or you are an advanced student who has completed the whole syllabus and just need a revision plan, this video is for you. Starting, we will talk about level one, the freshers who have just started the preparation and want a strategy on how to move forward. Your overall strategy will be about building your foundation in all the five subjects by understanding the concepts of the various subjects, not just memorizing them, using YouTube lectures to your command, and practicing daily and revising weekly. Your topics to be finished first are as follows. आपके पास बहुत सारा syllabus है. You are probably confused on where to start first. So here is a list of all the subjects that you have to, finish first, all the topics that you have to tackle. You cannot skip any of these topics. Please feel free to take a screenshot. The subject-wise approach after completing the high priority topics should be this. लीगल रीजनिंग में आपको 10 to 15 MCQ सॉल्व करने हैं whenever you are studying a topic. For example, you are studying tort law. So tort law पढ़ते पढ़ते आपको उसके at least 10 to 15 MCQs daily सॉल्व करने हैं ताकि आपका concept strengthen हो जाए and you also indulge yourself in a practice of solving the questions and solve 3 sectionals every day so that you know how to tackle the passages as well. Next, moving on to logical reasoning, work on understanding the passages, what the author is trying to say. Okay? How can you do that? You can do that by practicing your sectionals every single day. अगर आप author की बात समझ जाओगे, then it is going to be very easy to understand the different types of questions and solve them. For quantitative aptitude, while you are studying every topic, for example, you are studying percentage, उसकी एटलीस्ट 5 DI डेली सॉल्व करो सो दैट यू नो हाउ टू टैकल दीज क्वेश्चंस एंड क्लैट आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछता है. फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते 15 to 20 MCQ सॉल्व करने हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए इससे रिलेटेड कि आपको कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को. एंड पैसेजेस को समझने के लिए यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 2 sectionals एवरी डे ताकि आपको पैसेज और आरसी सॉल्व करने की अप्रोच समझ में आ रही है. फॉर जनरल नॉलेज आपको वीडियोस के नोट्स बनाने हैं, मंथली रिकैप वीडियोस के नोट्स बनाने हैं एंड यू हैव टू रिवाइज दीज नोट्स ऑन अ वीकली बेसिस. हर संडे या सैटरडे उसको रिवाइज कर लो सो दैट यू आर नॉट फॉरगेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव स्टडीड. नेक्स्ट आई विल बी गिविंग यू अ मंथ वाइज स्ट्रैटेजी कि हर महीने आपको कैसे पढ़ना है. जुलाई में आपको क्या करना है, अगस्त में क्या करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जुलाई एंड अगस्त शुड बी योर स्टडी इंटेंसिव मंथ्स. आपको इसमें पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को पहले टैकल करो सो दैट इवन इफ यू मिस आउट ऑन सम टॉपिक्स इट डज नॉट कॉस्ट यू. जुलाई में इंग्लिश एंड लीगल को तो पक्का पक्का स्टार्ट कर ही लेना है. यू कैन नॉट do any more delay in these subjects. जीके भी स्टार्ट कर लो सो दैट इट डज नॉट कॉस्ट यू. अगस्त में बाकी के सब्जेक्ट्स कर लो, सीआर कर लो, क्यूटी कर लो. अगर इंग्लिश या लीगल कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी इसमें ऐड कर लो. अब जब आपने मोस्टली आपका सिलेबस कवर हो चुका है, आपका आइडियली आधा सिलेबस हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है देन नो प्रॉब्लम, आप सेक्शनल स्टार्ट कर दो अगस्त में ताकि आपका प्रैक्टिस एलिमेंट भी आ जाए पढ़ाई में. सितंबर में बाकी का सिलेबस फिनिश कर लो और मॉक अपना देना स्टार्ट कर दो. हर हफ्ते में एक मॉक, एक्यूरेसी पे फोकस करो. अक्टूबर में योर सिलेबस शुड बी कंप्लीट, देन स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन द मॉक्स एंड द एनालिसिस. जो भी आपका एनालिसिस करने में आपका वीक टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को रिवाइज कर लो. नवंबर में रिवाइज द कोर टॉपिक्स लाइक योर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फिगर्स ऑफ स्पीच. ऐसे करके जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करो जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो. एंड आफ्टर एवरी 2 to 3 days गिव अ मॉक टेस्ट ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहे. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकेंड लेवल विच इज द बिगिनर्स. बिगिनर्स वो लोग हैं जिनका 30 to 40% सिलेबस हो चुका है एंड आपको आगे की अप्रोच चाहिए. सो यू हैव टू कंटिन्यू कवरिंग द रिमेनिंग सिलेबस. यू कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक्स एट ऑल. मॉक्स देते रहो, पढ़ाई के चक्कर में मॉक्स को स्किप मत करो. दीज मॉक्स विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज कि आप और कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है. In this time, since you are at an advantage of the syllabus, improve your accuracy in the mocks and time management. Try to complete all the sections within 1 hour 50 minutes at least, ताकि आपके पास रिविजन का टाइम बच रहा है मॉक्स के बाद.
एंड जो आपने पहले सिलेबस कवर अप कर लिया है उसको भी रिवाइज करना है। सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच रखनी है, लीगल रीजनिंग में आप सेक्शनल्स प्रैक्टिस करो ताकि आपको वीक टॉपिक समझ में आ जाए। वो वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, सो इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस पे बेस्ड प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। अपना जो स्टैटिक पार्ट है, मैक्सिम्स है, जजमेंट्स है, इनको रिवाइज कर लो। अगर नहीं पढ़ा है पहले से देन अब पढ़ लो बाय सॉल्विंग 20 एमसीक्यूज ऑन अ डेली बेसिस। लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक वाइज सेक्शनल सॉल्व करो, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड सेक्शनल सॉल्व करो, इन्फ्रेंस से रिलेटेड सेक्शनल सॉल्व करो। एंड जो भी सेक्शनल सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसके बेसिक्स को रिवाइज करो ताकि आप उसको टैकल करना सीख जाओ। एंड 20 एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करो ताकि आपकी रीजनिंग इंप्रूव हो जाए एंड रिफाइन हो जाए। In quantitative aptitude, percentage, ratio and proportion and average should be the strongest till now. अगर आपके ये तीन चैप्टर्स नहीं अच्छे हैं देन इनको हाई प्रायोरिटी बना लो, सबसे पहले इनको पढ़ो। If these three are your strong chapters, कंटिन्यू स्टडिंग टाइम एंड वर्क एंड स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, इन तीनों के बाद सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इन चैप्टर्स के आने की। इफ ऑल दिस इज डन, लर्न द फॉर्मूलाज, रिवाइज देम, एरिया एंड वॉल्यूम का भी फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। एंड प्रैक्टिस द सेक्शनल्स सो दैट यू नो हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस जो आपसे आते हैं। देन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, रिवाइज द ग्रामर बेसिक्स, व्हाट इज दैट, योर टेंसेस, वॉइस, ऑल दीज थिंग्स, इसको रिवाइज कर लो। अगर नहीं आता है देन स्टडी दीज थिंग्स फर्स्ट, आफ्टर दैट रिवाइज द टोन्स, फिगर्स ऑफ स्पीच। इफ यू हैव नॉट स्टडीड एनी ऑफ दीज या फिर इनमें से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, इसको हाई प्रायोरिटी में आप ले सकते हैं, इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। देन फॉर प्रैक्टिस, सॉल्व 2 RCs ऑन अ डेली बेसिस सो दैट यू नो कैसे टाइप के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को समझना कैसे है। जनरल नॉलेज में आपके जो पहले आपने टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं उसमें से भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले रिवाइज करो, सो दैट अगर बाकी के भी टॉपिक्स आप नहीं रिवाइज कर पा रहे हो यू आर नॉट एट अ लॉस। बाकी जो बैकलॉग है उसका आप मंथली रिकैप वीडियोस कर लो, डोंट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल। एंड देन आफ्टर कवरिंग दिस बैकलॉग कंटिन्यू योर वीकली रिविजन एंड मॉक टेस्ट में जो टॉपिक्स आते हैं उनको भी पढ़ लो। A month wise approach for the beginners is that जुलाई में आपको अपना पेंडिंग सिलेबस करना ही है फिनिश, एंड आपको रिवीजन बाय द मंथ एंड स्टार्ट कर लेना है। हफ्ते में एक मॉक आपको देना है। इन अगस्त यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, गिव 2 मॉक्स अ वीक एंड स्टार्ट योर जीके रिविजन। सितंबर में आफ्टर completing your syllabus and doing some practice, try to give 2 to 3 mocks per week and continue the GK revision. अक्टूबर में मॉक प्लस रिविजन स्ट्रैटेजी है, पहले मॉक दो, उसको एनालाइज करो एंड जो जो वीक टॉपिक्स हैं उसको रिविजन करो। लर्न द फॉर्मूलाज एंड स्टैटिक पोर्शन जो शायद आप पहले भूल गए थे। नवंबर में आपको हर दिन सेक्शनल्स देने हैं, हफ्ते में 2-3 मॉक्स देने हैं एंड कोर टॉपिक्स का रिविजन करना ही है आपको। Next, the last category is the advanced students. These are the people who have completed the syllabus and you guys are in need of a revision plan. तो आपको इस समय full length mocks पे focus करना है and उसकी analysis पे you have an advantage of the syllabus so you can refine your test taking strategy. आप अपने mock performance के weak areas पे focus कर सकते हो and current affairs से updated रहना ही है। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, लीगल रीजनिंग में एक टॉपिक रिवाइज करो पर डे, यू कैन डू दैट बाय वाचिंग 1 शॉट्स और रिवाइजिंग योर नोट्स। सेक्शनल्स प्रैक्टिस करो एंड उसमें जो वीक एरियाज है उनको आप फिर से स्टडी करो ताकि मिस्टेक नहीं हो। स्टैटिक पार्ट को भी आप रिवाइज करोगे, दैट इंक्लूड्स योर मैक्सिम्स, योर जजमेंट्स, योर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्सेट्रा। लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड जो भी आपको नहीं आ रहा है उसके आप सेक्शनल्स करो एंड स्टडी द बेसिक्स अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, सेक्शनल्स प्रैक्टिस करो ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए एंड एटलीस्ट 2 DIs पर डे सो दैट यू आर at an advantage. In English language, give your sectionals under a time pressure. English is one of the most scoring areas along with QT. अगर English और QT पे हाथ जम गया, then it is going to be a big advantage for you. Sectionals को time pressure में दो, for QT also, for English also. This will improve your speed and accuracy. Then grammar को revise करो, tones को करो, figures of speech को करो. You can do this by solving MCQs to refine your knowledge. जनरल नॉलेज में लास्ट 6 मंथ्स का सीए तो करना ही
नहीं है, if you can revise the CA of earlier months also, then that is absolutely perfect. Daily GK के quizzes attempt करो. Clat Waves पे at 9 p.m. we have daily quizzes, and for English we have quizzes at 7 p.m. So you can check that out on our Telegram channel. अगर कोई बैकलॉग है जीके में तो मंथली रिकैप वीडियो से उसको कवर कर लो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लो. A month-wise approach for the advanced level students is that जुलाई में आप अपने मॉक्स के एनालिसिस पे ध्यान दो. जो भी वीक टॉपिक है उसको आप स्टडी कर लो. ओके, लीगल एंड जीके का आपको हार्ड कोर रिविजन स्टार्ट कर देना है बाय दिस मंथ, एंड इस मंथ के एंड तक कोशिश कर लो कि एटलीस्ट लीगल आपका कंप्लीटली रिवाइज हो चुका है. अगस्त में बाकी सब्जेक्ट्स का अपना डीप रिविजन स्टार्ट कर दो, मॉक्स थोड़े से टफ दे दो, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो एंड सेक्शनल्स के थ्रू उसकी प्रैक्टिस कर लो. सितंबर में आपकी डेली प्रैक्टिस एंड सेक्शनल्स होने चाहिए एंड 2 मॉक्स अ वीक सो दैट योर प्रैक्टिस इज एट अ टॉप लेवल. अक्टूबर में एवरी 2 to 3 days अपने मॉक्स दे दो, सेक्शनल्स आपको डेली बेसिस पे देने हैं एंड स्टार्ट योर डेली रिविजन ऑल्सो. सेक्शनल्स एंड रिविजन शुड बी ऑन अ डेली बेसिस. नवंबर में आपको मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है एंड जो भी वीक एरियाज है उसको आप रिवाइज करते जाओ. इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि हम कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कैसे डिवाइड करें, हियर इज अ वीकली शेड्यूल एंड दिस कैन बी फॉलोड बाय ऑल लेवल्स, वेदर यू आर अ फ्रेशर, अ बिगिनर और एन एडवांस्ड लेवल स्टूडेंट. यू कैन जस्ट चेक आउट दिस शेड्यूल. बाकी सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी अप्रोच डिफरेंट है सारे लेवल्स का, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले. सो यू आर वेलकम टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. That brings us to the end of this session. Thank you so much for joining. If you have any doubts, you can comment them in the comment box below and join us on Telegram at ClatWaves. If you're not on Telegram, the WhatsApp group link is in the description box below. Thank you so much for joining. Have a great day.